السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کے لیے نیا ناول لے آئی ہوں، لیکن اس ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چند ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ پلیز سن لیجئے گا 5-7 منٹ تک میری باتوں کو۔ سب سے پہلے یہ کہ میں نے ناول کی ایپیسوڈ کا ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ اب میری کوشش یہ رہے گی کہ 40 سے 45 منٹ تک کی ایپیسوڈ ہو، اس سے زیادہ طویل نہ ہو، سننے والوں کو بھی آسانی رہے اور مجھے بھی آسانی رہے۔ سردیاں ہیں تو سبھی کو اندازہ ہے کہ ہونٹ اور گلا جو ہے وہ بہت خشک رہتا ہے۔ جب میں بولتی ہوں زیادہ دیر تک تو اس سے میرے گلے میں شدید درد ہو جاتا ہے، ہونٹ بہت خشک رہنے لگے ہیں۔ حالانکہ میں لپ گلوز یا ویزلین وغیرہ استعمال کرتی ہوں، اس کے باوجود بہت خشکی رہتی ہے، ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، شدید درد ہوتا ہے گلے میں بھی اور ہونٹوں میں بھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اب ڈیوریشن جو ہے وہ کم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے دوسرے چینل پر بھی بھرپور توجہ دوں، جو کہ کافی عرصے سے نظر انداز ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ سبسکرائبر بھی پورے نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو میں تھوڑا سا وقت اس چینل کو بھی دینا چاہتی ہوں۔ وہاں پر کانٹینٹ آپ کو مختلف قسم کا ملے گا، صرف رومانٹک ناول نہیں ہوں گے، وہاں پہ آپ کو جاسوسی ٹائپ کہانیاں بھی ملیں گی، وہاں پہ آپ کو ہارر سٹوریز بھی ملیں گی، ہر طرح کے جو ہے ناول آپ کو وہاں سننے کو ملیں گے۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں سے تھوڑا سا وقت بچا کر دوسرے چینل کو بھی باقاعدہ ریگولرلی وہاں پر اپلوڈنگ کروں، تو اس وجہ سے بھی مجھے ادھر ٹائم تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا۔ تو یہی ساری وجوہات ہیں، اور سننے والوں کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جب زیادہ لانگ ڈیوریشن کی ایپیسوڈ ہوتی ہے تو اتنا تو خواتین کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 2-2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ایپیسوڈ سنتے رہیں، تو انہوں نے مختلف اوقات میں ہی ایپیسوڈ پوری سننی ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایپیسوڈ زیادہ کر دوں لیکن ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دوں، آپ سب کو بھی آسانی رہے اور مجھے بھی سہولت رہے۔ ناول کی بات کریں کہ آج میں کون سا ناول شیئر کر رہی ہوں، تو جناب آپ سب کی فرمائشیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں۔ مجھے وقت نہیں ملا، کچھ دنوں سے میں تھوڑی سی زیادہ مصروف ہوں کچن میں، تو مجھے وقت نہیں ملا، اور پھر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ زیادہ گیپ نہ آئے، آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو فی الحال میں نے تیفور کا ہی ایک ناول جو ہے وہ چوز کر لیا۔ میں نے اس کی سٹوری تھوڑی سی پڑھی، مجھے بہت اچھی لگی، اس میں بہت اچھا میسج جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پورا میں نے ابھی نہیں پڑھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی ناول کی طرح یہ ناول بھی اپلوڈ ہو چکا ہو، آپ لوگوں نے سنا ہو پھر ڈیلیٹ ہو گیا ہو، مجھے بہرحال یوٹیوب پر نہیں ملا۔ تو میں نے ابھی فی الحال جلد بازی میں یہی ناول سلیکٹ کر لیا ہے، رائٹر اچھی ہیں اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی یہ ناول چوز کر لیا ہے۔ بہت طویل یہ ناول نہیں ہے، لیکن ایپیسوڈ کیونکہ ڈیوریشن کم ہوگا تو ایپیسوڈ زیادہ ہو جائیں گی اس کی۔ البتہ یہ زیادہ طویل ناول نہیں ہے، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوا بھی ہو تو فی الحال میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی، آپ لوگ دوبارہ سن لیجئے گا، اور درمیان میں کوشش کروں گی کہ کوئی اچھے ناول کو سلیکٹ کر لوں، کوئی اچھا ناول سرچ کر لوں، آپ لوگوں کی فرمائشوں میں سے ہی کوئی اچھا ناول مل جائے مجھے تو میں وہ شیئر کر دوں گی۔ لیکن ابھی مصروفیت کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے سکی ہوں، سرچنگ نہیں کر سکی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ فی الحال میں یہ ناول چوز کر لیتی ہوں، آپ لوگوں کو سننے کو کچھ نہ کچھ مل جائے، پھر اس دوران میں کوشش کروں گی کہ کوئی اور ناول بھی میں ڈھونڈ لوں۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا، تو میں انشاءاللہ جلد کوئی دوسرا ناول بھی سلیکٹ کر لوں گی، اور آپ لوگ بھی مجھے سجیسٹ کر دیا کریں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھا کریں کہ پہلے آپ خود سرچ کر لیا کریں کہ جو ناول آپ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب پر آڈیو میں موجود نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر یہ کر لیں تو مجھے کافی سہولت ہو جاتی ہے، آسانی رہتی ہے، میرا وقت بچ جاتا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا پڑتا کہ میں گوگل اور یوٹیوب پر جو ہے وہ سرچ کرتی رہوں، ڈاؤن لوڈ کروں، پھر سوچتی رہوں کہ یہ تو پہلے سے اپلوڈڈ ہے۔ تو تھوڑی سی محنت آپ کر لیا کریں کہ یوٹیوب پر جو ناول اپلوڈ نہ ہو وہی سجیسٹ کیا کریں، اگر وہ ناول پہلے سے موجود ہو تو پلیز وہ سجیسٹ مت کیا کریں، میرا کافی ٹائم پھر ضائع ہو جاتا ہے اسی چکر میں۔ خیر باتیں بہت ہو گئی ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ہم ایپیسوڈ کی جانب۔ کہانی کا نام ہے اونچ نیچ کا پہاڑ، رائٹر ہے تیفور، قسط نمبر 1۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہار، مالک دیکھ رہا ہے، کتا بھونک رہا ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون پگتا ہے۔ ٹھرپ ٹھرپ کی مسلسل آواز اس کے پیروں میں پہنے جوتوں سے آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ مکمل جوش کے ساتھ اس جانب بڑھ رہا تھا جہاں 5-7 بچوں کا ٹولہ کھیل رہا تھا۔ گول دائرے کی شکل میں وہ 7 بچے تھے۔ ایک بچہ جو ان سب میں قد میں لمبا تھا وہ یہ الفاظ دہراتا،
जिस बच्चे पर इख्तिताम होता वो भागता हुआ किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता। यूं आखिर में रह जाने वाला बारी देता और बाकी सब जगह बदल बदल कर उसे भगाते रहते। अगर बारी देने वाला बच्चा किसी ऊंची जगह पर चढ़कर पकड़ने की कोशिश करता तो उसे चुटकियां काट काट कर नीचे उतार दिया जाता। वह नीम मुस्कुराहट लिए ठर्प ठर्प करता चला आ रहा था। उसके पैरों के पंजे अपने साइज से बड़ा जूता पहनने की वजह से दुख दुख कर शल हो गए थे। 2 नंबर बड़ा जूता जिस पर गिरफ्त कायम रखने की खातिर वो पंजा जकड़ कर चलता था, अब जैसे बुरी तरह थक गया था। फिर भी वो मुस्कुराता उन बच्चों के करीब पहुंचकर एक तरफ बनी छोटी सी थड़ी पर बैठ गया, जहां वो पिछले कई रोज से बैठकर उन बच्चों को खेलते देखा करता था। चंद रोज पहले तक वो यहाँ से कुछ आगे स्टाफ पर बने बेंचों पर बैठा करता था। उधर वो यूं ही तन्हा बैठा पौन घंटा सर्व किया करता। लेकिन एक दिन उसने दूर से इन बच्चों को खेलते देखा तो तब से शौक में यहाँ बैठने लगा। उसने स्कूल बैग कंधों से उतारकर नीचे रख दिया और दोनों हाथों की मुट्ठियां ठोड़ी के नीचे जमा कर वो पूरे इन हमाक से खेल देखने लगा। एक बच्चा भागता हुआ ऊंची जगह ढूंढ रहा था जहां चढ़कर वो खुद को पकड़ने से बचा सके, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। इससे पहले कि वो पकड़ा जाता वो थड़ी से उठा और उसे आवाज देते हुए बोला, यहाँ यहाँ आ जाओ, इस पर चढ़ जाओ। बच्चा भागता हुआ आया और फौरन उस थड़ी पर चढ़ गया। वो बहुत खुश हुआ कि उसने उस बच्चे की मदद की है। दिल में कहीं लालच छुपा था कि अब वो सब उसे भी खेलने की पेशकश करेंगे, मगर उस बच्चे ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा तक ना था। वो पसीज गया। पकड़ने वाला बच्चा करीब पहुंचकर उसे ही कीनातोज नजरों से देखने लगा और फिर हल्का सा धक्का देता किसी और तरफ निकल गया। वो हल्का सा धक्का ही उसे गिरा गया, क्योंकि उसके पैरों में जूते उसके साइज के नहीं थे और जिन्हें पहले ही पैरों में फिट करने के वो जतन कर रहा था। धक्के से गिरफ्त ढीली हुई और वो उलटकर कच्ची मिट्टी पर गिरा। जितनी तेजी से वो गिरा था उससे ज्यादा सरत से वो खड़ा हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म गंदा होता तो उसे मार पड़ती। वो अपने दोनों बाजू पीछे कमर पर लाकर हाथों से पुश्त झाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी यकदम उसकी गर्दन पर किसी ने जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो बिदक कर पलटा और मजीद सहम गया। उसका बड़ा भाई लाल भभूका चेहरा लिए उसे घूर रहा था। वो सामने से चलकर आया हूं मैं, वैन वाले ने आज वहां उतार दिया था। इतनी गर्मी में मुझे तुम्हारी वजह से मजीद चलना पड़ा। कितनी बार कहा है कि उसी जगह खड़े रहा करो, असर क्यों नहीं होता तुम्हें? घर चलो, बताता हूँ अम्मी को। उसके बड़े भाई ने वो को इतना लंबा किया कि उसे लगा सारा रास्ता इसी 2 हरफी लफ्ज में इकट्ठा हो गया है। खिजर वहां छाँव नहीं है, गर्मी लगती है और अकेला होता हूँ, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। अम्मी को ना बताना, कल से वहीं खड़ा हो जाऊंगा। वो मिनमिनाया, लेकिन उसका बड़ा भाई उसकी बात सुने बिना उससे आगे तेज तेज कदमों से चलता आगे निकल गया। वो बड़े साइज के जूतों में ठर्प ठर्प करता उससे जा मिलने की कोशिश में हलकान हुआ जा रहा था। 2 कदम और चलकर उसके भाई ने पलट कर अपना बैग उतारा और उसके मुंह पर तकरीबन फेंकते हुए फिर चल पड़ा। वो अपने बैग के साथ भाई का बैग भी उठाता था। रोजाना इसी मामूल के तहत वो स्कूल से घर वापस जाते थे। वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, जबकि उसका भाई और छोटी बहन गैरिजन में तालीम हासिल कर रहे थे। छोटी बहन अभी क्लास 1 में थी। उसकी ऑफ टाइमिंग जल्दी हो जाती थी, इसलिए मामू उसे पहले ही पिक करके घर छोड़ देते थे। उसकी छुट्टी अपने भाई से 45 मिनट पहले हो जाती थी, लेकिन उसे सख्ती से हुक्म था कि वो उस जगह बैठकर अपने बड़े भाई का इंतजार करेगा और उसके साथ ही घर वापस आएगा। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में यही उसका मामूल था। वो बिला वजह पौन घंटा वहीं बैठा रहता। उसके भाई की वैन उसे स्टॉप पर उतारती और वहां से वो 5 से 7 मिनट का पैदल रास्ता तय करके घर पहुंचा करते। उसकी अम्मी को ये 5 से 7 मिनट मंजूर नहीं थे कि उसका बड़ा भाई अकेला घर पहुंचे, इसलिए वो मुफ्त में ये बेगार काटता आ रहा था। घर पहुंचने तक वो जी ही जी में खूब कुड़ता रहा। वो यही कर सकता था बस। जितना गुबार, जितनी भड़ास उसके दिल में अपने घर वालों के लिए जमा हो चुकी थी, वो खुद पर ही निकालता था। सारा रास्ता जान पहचान के लोग उन दोनों भाइयों पर नजर लाजमी जमाते, उस पर तरहम भरी और उसके बड़े भाई पर जहर भरी। सभी को उसकी हालत काबिले तरस लगा करती, सिवाय उसके अपने घर वालों के। वो इन्हीं सोचों में गलता ठर्प ठर्प करता घर पहुंचा तो उसका भाई कब का अंदर जा चुका था और गेट भी बंद कर गया था। उसकी आंखें गीली हो गईं, जिन्हें उसने आस्तीन से साफ किया। दोनों बैग कंधे से उतारकर उसने थड़े पर पटक दिए और नफरत और बेबसी के एहसास से मगलूब होकर बैल पर उंगली रख दी। चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए भून के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। वो ढलती शाम में छत पर अकेला बैठा दरख्त की टहनी हाथ में लिए दीवार से टेक लगाए गुनगुना रहा था। साथ वालों के सेहन में लगा अमरूद का पेड़ उनकी छत पर झुका हुआ था।
उस पर से 2-3 कच्चे अमरूद और छोटी सी टहनी तोड़े वो फर्श पर बैठा टहनी से अमरूदों के साथ हॉकी की तरह खेल रहा था। बाहर गली में बच्चे अभी भी गुलगपाड़ा मचाए हुए थे। कुछ देर पहले वो भी नीचे उन्हीं के साथ था, मगर फिर उसका भाई ट्यूशन पढ़कर लौट आया। अपना बैग उसके सीने पर उछालकर अंदर रख के आने को कहा, और जब तक वो रख के आया तब तक जो जगह वो बमुश्किल आधे घंटे में कुछ चापलूसी और कुछ गट्स की वजह से बनाने में कामयाब हुआ था, उसका भाई उसे हथियाने में कामयाब हो गया था। सब बच्चे गोल दायरे में हाथों की पुश्त एक दूसरे के हाथ पर रखकर खड़े हुए और उसका भाई बारियां लगाने के लिए बोलना शुरू हुआ। थैंक यू वेरी मच, यू आर मगरमच्छ। पुट्ठे होके नच। जिस पर नच का लफ्ज आ जाता वो पुग जाता और हाथ हटा लेता। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ सबके हाथों के दरमियान फंसा दिया। उसके भाई ने बोलते बोलते एक उचटती निगाह उस पर डाली। वो सबको बारी बारी पुगाता जा रहा था, लेकिन दरमियान से उसका हाथ नजरअंदाज कर जाता और आखिर में बारी देने वाला लड़का रह गया या वो खुद। वो लड़का तो सबके पीछे भागने लगा, लेकिन वो क्या करता जब उसे कोई खिला ही नहीं रहा था, तो वहां रुककर भी क्या करता। इसलिए खामोशी से छत पर चला आया। तब से वहीं बैठा आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाता जा रहा था। आज का होमवर्क भी उसने नहीं किया था, क्योंकि अम्मी ने फिलहाल 2-3 दिन तक उसे जूते दिलाने से मना कर दिया था। सैन, किस कदर बेहिस हो तुम। 4 दिन निकाल नहीं सके, नए जूते हैं, पुराने भी नहीं, सिर्फ मामूली से बड़े हैं ना। मैं सुबह तुम्हें आगे कागज फंसा दूंगी, ठीक रहेंगे। अब अपने अब्बू को तो आ लेने दो, तभी ला के देंगे ना। आज दोपहर के खाने के बाद जब उसने अम्मी से नए स्कूल शूज का कहा, तो आगे से उसे ये जवाब सुनने को मिला। अम्मी, क्लास में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब हंसते हैं मेरे जूतों की आवाज़ पर। मैंने स्कूल में कागज़ फंसा के देखा था, ये तब भी फिट नहीं होते। और भाई के आए थे ना ये जूते, उसे पसंद नहीं आए तो आपने मुझे दे दिए। हालांकि स्कूल शूज़ मेरे ख़राब थे, फिर भी बिला वजह भाई को पहले ये दिला दिए जो उसे घर आकर पसंद नहीं आए, तो आपने उसी शाम दूसरे दिला दिए, मुझे फिर भी नहीं लेकर दिए। मैं नहीं पहनूंगा, नए चाहिए मुझे अभी। वो रुहासा होकर बोलता चला गया। माँ ने आगे बढ़कर मुंह पर कसकर थप्पड़ लगाया। कितनी जुबान चलने लगी है तुम्हारी, किससे दोस्ती है तुम्हारी आजकल। कतर कर रख दूंगी मैं, समझे। और बड़े से मुकाबला क्यों करते हो। मर नहीं गए हो जो उसे 2 शूज़ दिला दिए। आज ये हाल है तुम्हारा कि उसकी छोटी सी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, कल को तो गले काटोगे जलील इंसान। अम्मी गुस्से से चली गई और वो सुन सा बैठा रह गया। थप्पड़ का दुख अब उसे नहीं होता था, क्योंकि वो अम्मी और बड़े भाई से आम मार खाता रहता था। दिल तो उसका कांपा था गले काटने वाली बात से। ये बात उसके छोटे से जहन के लिए बहुत बड़ी थी। एक होलनाक तस्वुर था जो निगाहें बांध रही थी। तो क्या वो इतना बुरा है, वो ऐसा कभी कर सकता है। अम्मी उसे ऐसा समझती हैं। मिस कहती हैं माँ बाप को हर बात पता होती है। अम्मी को भी पता होगा, तभी वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं वाकई बुरा हूँ। यही कुढ़न लिए वो छत पर चला आया था। उसे अपने ऊपर अफसोस हो रहा था। वो क्यों पैदा हो गया था। अम्मी उसकी सगी अम्मी नहीं है क्या। उसे कहीं से उठाया गया होगा। हो सकता है वो किसी दिन अब्बू को शहर से आते हुए कहीं पड़ा मिला हो, तो वो उसे तरस खा के ले आए हों। पता नहीं मेरे असल अम्मी अब्बू कहाँ होंगे। ऐसी बेशुमार छोटी छोटी खुद तरसी में डूबी सोचें उसके गिर्द घेरा तंग किए नाचने लगीं, और वो 8 साल का बच्चा उन सोचों के बीच दुख का अलाव बना जल रहा था। उसका नाम ज़ैनुल आबदीन था। वो एक प्यारी और भोली सूरत का पुरकशिश बच्चा था, बल्कि अगर गैर जानिबदारी से देखा जाता तो वह अपने बड़े भाई खिजर और छोटी बहन जोया से ज्यादा प्यारा था। खिजर का रंग रूप हूबहू अब्बू पर था, गंदमी रंगत से नकूश और छोटी आंखें, जबकि वो अम्मी की कार्बन कापी था, उन्हीं के जैसा गोरा और तीखे नकूश वाला बच्चा। और जोया ने रंगत अम्मी की और नक्श अब्बू के चुराए थे, सो इस लिहाज से देखा जाता तो वो उन दोनों से ज्यादा प्यारा था। कभी अनजान लोगों से मिलना मिलाना होता तो हर कोई उसकी मनमोहनी सूरत पर फरेफ्ता हो जाता, लेकिन उसकी माँ को अपने बड़े बेटे से इश्क था। ये इश्क जुनून की तरह सर चढ़कर बोलता। उसने बहुत छोटी उम्र से माँ का खिजर के लिए वालेहानापन देखा था। उसके कपड़े जूतों को ख्याल, उसकी खुराक का ध्यान, उसे पढ़ाना खिलाना सुलाना नहलाना जैसे माँ के लिए सादत थी। और ये वो खुद तो नहीं जानता था, लेकिन दादी से सुना था कि इस अमल में शिद्दत उसके पैदा होने के बाद से आई थी। वो 2-3 साल की उम्र से अपनी माँ की बेजा नफरत का निशाना बनता आया था। तब शऊर ना था। माँ के थप्पड़ को वो सहता था, मवाजना नहीं करता था। वो बीमार हो जाता तो माँ की गोद में घुसता, लेकिन वो उसे दादी के हवाले कर देती और खिजर को बाहों में भर लेती। थोड़ा शऊर आया तो उसे महसूस होने लगा कि जिस गलत काम पर उसकी धुनाई होती है, उसी पर खिजर से निगाह बचा ली जाती।
وہ پیار حاصل کرنے کے چکر میں خضر جیسی باتیں کر اور شرارتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے ساتھ الٹ معاملہ ہو جاتا۔ اسے انہی باتوں اور شرارتوں پر مار پڑ جاتی۔ اس کا ننھا ذہن بہت چھوٹی سی عمر میں یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ امی ابو کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ خضر بیماری کی حالت میں کیا کرتا یا بستر گیلا کر دیتا، امی اسے محبت سے صاف کر دیتی۔ جبکہ اسے کیا آ جاتی تو پہلے کمر پر زوردار دھموکے پڑتے اور پھر اسے صاف کیا جاتا۔ اندرونی خلفشار یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے وہ 9-10 سال کا ہونے کے باوجود رات کو سوتے میں بستر گیلا کرنے لگا تو امی اسے ٹھٹھرتی سردی ہوتی یا گرم ترین راتیں بالوں سے پکڑ کر اٹھاتی اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیتی۔ یہ آفت اس کے ننھے جسم پر کیسی گراں گزرتی اس کا انہیں احساس تک نہ ہوتا۔ کبھی دادی آئی ہوتی تو وہ امی کو خبر ہونے سے پہلے ہی اسے پیار محبت سے صاف کر دیتی اور اس کا بستر بھی دھو ڈالتی۔ خضر کی سالگرہ ہوتی تو گھر بھر خوشی منا رہا ہوتا۔ اس کی اور زویا کی سالگرہ کو اہتمام سے منایا جاتا کیونکہ وہ بڑا تھا اور زویا چھوٹی تھی۔ زین خود کہاں تھا وہ کبھی جان ہی نہ پایا۔ کبھی اپنی سالگرہ کے لیے ضد کرتا تو امی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اب کی بار بھائی کے کیک کے ساتھ تمہارا کیک بھی کٹواؤں گی۔ وہ چپ ہو جاتا۔ ایسا خضر کبھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جس منمانی اور راجدھانی کی اسے عادت پڑ چکی تھی وہ اس میں شراکت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہر موقع کی تصاویر کا مکمل البم خضر اور زویا کا تھا، کیونکہ خضر بڑا تھا اور زویا چھوٹی، اوپر سے اکلوتی بہن۔ تو امی اسے کہتی تم تو بس مقابلے کرنے پر رہا کرو ہر وقت، پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو، حسد ہی نہیں جاتا تمہارا۔ اور وہ سوچتا کہ ایک تصویروں والا البم اس کا بھی ہو، ایسی چاہت کرنا حسد ہے؟ اس کی اگر کوئی تصویر تھی بھی تو کسی فیملی فنکشن میں سب کے بیچ وہ کہیں دکھائی دے جاتا تھا۔ ابو کا کردار ایک خاموش تماشائی سا رہا ہمیشہ، جنہیں بس یہ پتا تھا کہ ویکینڈ پر انہیں گھر آنا ہے اور پھر سوموار کو صبح صبح چلے جانا ہے۔ 2 دن کی چھٹی میں وہ خوب جی بھر کر اخبار پڑھتے، گوشت مرغی اور ہفتے بھر کی سبزی کا بندوبست کرتے، ضروری مرمتیں کرتے اور باقی وقت سو کر گزارتے۔ امی کا گھر بھر پر ایسا کنٹرول تھا کہ انہوں نے جس چیز کو جیسا چاہا اسی کو سب نے اپنی چاہت بنایا۔ امی کی دیکھا دیکھی ابو کو بھی خضر سے بہت محبت تھی اور زویا تو تھی ہی ننھی چڑیا، تو وہ ابو کا بھی فرسٹ آپشن نہ بن سکا کیونکہ امی کی ترجیح وہ نہیں تھا۔ ابو کوئی گیم لاتے یا کپڑا، خضر کو ہی آواز دی جاتی اور وہ گردن اکڑاتا من پسند چیزیں لیے اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتا کمرے سے چلا جاتا۔ زویا کو ابو خضر سے بھی پہلے اس کا کھلونا تھماتے تھے کیونکہ وہ چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ ایسے میں وہ جھجکتا اور ہکلاتا ابو سے اپنے کھلونے کی فرمائش کرتا تو چائے کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے ابو چونک کر امی کو دیکھتے کہ وہ جواب دیں، اور امی اسے پچکارتے ہوئے کہتی تو خضر کی چیز بھی تمہاری ہے بیٹا، وہ اکیلا کب کھیلتا ہے، اور اس نے اتنے کپڑے نکالے ہیں پچھلی دفعہ والے، وہ سب میں ابھی تمہاری الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ بڑا ہے زین، اسے مان دینا سیکھو، اس کے ہاتھ میں پہلے چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کی کوئی حیثیت بنے، وہ کل کو گھر کا بڑا بیٹا بنے گا اور تم کب اپنا دل بڑا کرو گے، جاؤ اب اور مل کر کھیلو۔ امی کی اس متلل گفتگو کا اس کے پاس کوئی جواب کبھی ہوا ہی نہ تھا کیونکہ وہ ایسے جوابات دینے کے لیے ابھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ خضر اسے کبھی کسی کھلونے کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتا، وہ تو ان کے لمس تک سے مانوس نہیں ہے۔ جب بھی ابو کوئی کھلونا لاتے خضر کو یہ کہہ کر تھماتے کہ دونوں کھیلو، لیکن کھیلنے والا صرف خضر ہوتا اور دوسرا بھی وہی ہوتا۔ ایسے میں کبھی وہ چوری کوئی کھلونا کھیل لیتا تو خضر کی مار کٹائی کا اس قدر ڈر ہوتا کہ اس سے بہتر وہ نہ کھیلنا سمجھتا۔ خضر کو اچھی چیز ملنی چاہیے کیونکہ وہ بڑا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا ماحول اور اچھی پڑھائی۔ 2 سال پہلے تک وہ تینوں بہن بھائی ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، وہ سیمی گورنمنٹ تھا، پڑھائی اور ماحول دونوں اچھے تھے، لیکن پھر ابو کی پروموشن ہو گئی، آمدن میں اضافہ ہوا تو امی کو لگا کہ بچوں کا اسکول بدلا جائے۔ کینٹ میں ایک بہترین اسکول تھا، وہاں آرمی آفیسرز کے بچے بھی پڑھتے تھے اور سویلینز کے بھی۔ امی کو اسکول کا ڈسپلن اور شور شاہ بہت اپیل کرتی تھی، ارادہ کیا کہ بچوں کو یہاں ڈال دیا جائے۔ فیسیں معلوم کی تو امی اور ابو دونوں ششو پنچ میں پڑ گئے۔ تینوں کی فیس ادا کرنے کے بعد امی کا ہاتھ تنگ ہو جاتا۔ اسکول کے علاوہ ٹیوشن علیحدہ تھی جو خضر کے لیے لازم و ملزوم تھی۔ 2 دن سوچ بچار ہوتی رہی اور پھر تیسرے دن ابو کے شہر جانے سے پہلے فیصلہ ہو گیا کہ فی الحال خضر اور زویا کو نئے اسکول داخل کروا دیا جائے، اگلی کلاس میں زین کو بھی وہیں کروا دیں گے۔ خضر کی کلاس بڑی ہو رہی تھی اس لیے ابھی سے اس کا اسکول بدل جانا بہتر تھا، ورنہ آگے جا کر اسے ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی، اور زویا کو اب پریپ میں جانا تھا، بیس تھی، ابھی سے اچھے اسکول میں بن جاتی تو بہتر ہوتا۔ رہ گیا زین، تو اس کی بیس تو بن ہی چکی تھی، کلاس بھی ابھی بہت بڑی نہیں تھی، لہٰذا سال بعد بھی کروا دیتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ ساری گفتگو زین نے خود اپنے ماں باپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سنی تھی،
वो अपना लंच बॉक्स और वाटर बॉटल किचन में रखने गया था। वापसी में अम्मी अब्बू के कमरे के बाहर से गुजरते उनको बच्चों का जिक्र करते सुना तो वहीं रुककर सुनता चला गया। अम्मी का हतमी अंदाज और दो टोक लहजा अब्बू को हमेशा से चुप कराता आया था। वो उनके फैसले से कभी इख्तलाफ करते ही नहीं थे। अगर कर भी देते तो अम्मी का एक ही मखसूस जुमला होता, आप तो चुप ही रहें, आपको क्या पता, आप यहाँ थोड़ी होते हैं। और फिर अब्बू सर धुनते खामोश हो जाते। सैन बोझल दिल लिए कमरे में वापस आ गया। अपने बेड पर बैठकर जीरो बल्ब की रोशनी में वो कुछ देर खिजर को देखता रहा, जो अभी पूरी तरह गहरी नींद में नहीं गया था। सामने स्टडी टेबल पर उसने अपने और खिजर के कपड़े सेट कर रखे थे, जो अम्मी ने सुबह नए स्कूल एडमिशन टेस्ट के लिए पहनकर जाने के लिए निकलवाए थे। उसने बड़े शौक से सब तैयार किया था। वो मेकान की अंदाज में उठा और टेबल के करीब आया। अपने कपड़ों को हाथों में थामकर सीने से लगाया, जहां अनदेखा सा दर्द जमा हो रहा था। उसकी नन्ही सी ठोड़ी जज्बात की शिद्दत से लर्ज रही थी। आंसू किसी भी वक्त गालों पर बह निकलने को थे, लेकिन वो जब्त कर गया। पता नहीं कैसे कर गया। कपड़ों को रफ सी तह लगाकर उसने अलमारी के अंदर रख दिया। अपने बिस्तर पर करवट के बल लेटकर जब तक वो सो नहीं गया था तब तक वो टेबल पर सजे खिजर के कपड़ों को देखता रहा था। सुबह वो उठा तो उसका नन्हा सा सर दर्द से फट रहा था, आंखें भी मतवरम थीं। वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता बमुश्किल बाहर आया था, गो कि उसका दिल स्कूल जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी न जाने वो क्यों तैयार हो गया था। दिल में कहीं उम्मीद थी कि अम्मी उसे यूनिफॉर्म में देखकर जरूर बोलेंगी, तुम्हें किसने यूनिफॉर्म पहनने को बोला है? बताया नहीं था कि सुबह एडमिशन टेस्ट है, नए स्कूल जाना है? और वो डांट खाकर वापस कमरे में जाकर कपड़े तब्दील कर लेगा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आया तो सबसे पहले खूबसूरत से बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहने और दो छोटी छोटी पोनियां बनाए बैठी जोया ने पूछा था, सैन भाई आपको क्या हुआ, आपको दर्द है? वो छोटी थी, उससे मोहब्बत करती थी, अभी वो भेदभाव में पड़ने की उम्र में दाखिल नहीं हुई थी। जैन ने खिसियाते हुए उसे अंगूठा दिखाकर अपने ठीक होने का इशारा दिया। मुंह से कोशिश के बावजूद जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि हमदर्दी के नन्हे बोलों ने हलक में आंसुओं का गोला अटका दिया था। वो शऊरी तौर पर कुर्सी पर ऊंचा होकर बैठा था ताकि अम्मी की निगाहें उस पर पड़ जाएं। वो एक बार किचन से आमलेट की प्लेट रखकर जा चुकी थी, मगर जल्दी में उन्होंने उसे नहीं देखा था। वो बेचैन सा हाथ मसलता रहा। अब्बू भी कमरे से निकल आए और कुर्सी खींचकर नाश्ता करने बैठ गए। उन्होंने फौरन अखबार उठा लिया था। जैन ने अब्बू को सलाम किया तो उसका जवाब भी उन्होंने अखबार के पीछे से नरमी से दे दिया। उसका दिल दोबारा भर भर आने लगा। कोई तो उसे नोटिस करे कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए है और रंगीन कपड़ों में एडमिशन टेस्ट देने नहीं जा रहा। कोई तो उसे इस बात पर झिड़के और वजह पूछे। वो तसव्वुर में खुद को बताते सुन रहा था कि वो रात अम्मी अब्बू की बातें सुन चुका है और उसने फैसला किया है कि वो इसी स्कूल में रहेगा। अब्बू अपनी जगह से उठेंगे और उसे सीने से लगाकर कहेंगे कि तुम्हें फिक्रमंद होने की भला ज़रूरत है मेरे होते हुए, मैं हूं ना। और अम्मी भी पीछे से उसे बाजू में लेकर उसकी पेशानी चूमते हुए कहेंगी, मेरा एहसास करने वाला प्यारा बच्चा, कितनी फिक्र है इसे अपने माँ बाप की। वो इन्हीं तसव्वुरात को बांधे खुश उम्मीद था कि उसे पता भी ना चला कब अम्मी भी आकर बैठ गईं और नाश्ता शुरू हो चुका। अम्मी ने उसके आगे भी प्लेट में 2 स्लाइस और आमलेट रख दिया था और अब अब्बू से बातें करती जोया को छोटे छोटे लुक़्मे बनाकर खिला रही थी। वो एक बार फिर सदमे में घिर गया। अम्मी ने उसका लंच बॉक्स और वाटर बॉटल भी टेबल पर लाकर रखा था, यानी कि वाकई वो नहीं जा रहा था, वो पुराने स्कूल ही जाने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करे। छोटा सा जहन और दिल खुद को चिल्ला चिल्लाकर अम्मी अब्बू के सामने अपने हकूक के लिए लड़ता देख रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो ठुस सा बैठा प्लेट को घुरे जा रहा था। तभी अम्मी ने मसरूफ अंदाज में खिजर को आवाज़ लगाई, खिजर निकल भी आओ बेटा, देर हो रही है। चाय के मग को मुंह से लगाते हुए वो अब्बू से मुखातिब हुई, अभी जाते हुए जैन को स्कूल भी ड्रॉप करना है, सोच रही हूँ आज पैदल ना ही भेजूं, जब निकल ही रहे हैं सब तो साथ ही ड्रॉप करते हुए आगे चले जाएं, क्या ख्याल है? और अब्बू का अपना अलग ख्याल कभी हो ही नहीं सकता था। हाँ में हाँ मिलाकर वो दोबारा नाश्ते और अखबार में मसरूफ हो चुके थे। तभी खिजर नकसक से तैयार कमरे से निकला और उसके पीछे से गुजरता बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठा। यह भी हैरत का मुकाम था, या तो वो बहुत खुश था या आज उसके मुंह लगने का मूड नहीं था, वरना जिस कुर्सी पर जैन बैठा हुआ था वो खिजर के लिए मखसूस थी और इस बात पर वो और अम्मी कोई समझौता नहीं करते थे। लेकिन आज उसे इस कुर्सी से ना अम्मी ने उठाया था ना खिजर ने, तो क्या वो लोग उसे खामोश रखने के लिए नाखुशगवार बातें भी बर्दाश्त कर रहे थे? जैसे बड़ी चीज़ दस्तरस से दूर रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से बहला लिया जाता है, तो उसे भी बहलाया जा रहा था। उसने एक लुकमा तक नहीं लिया था क्योंकि वो अंदर ही अंदर दुख से भर गया था और उसने ठान लिया था कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा चाहे जो मर्जी हो जाए।
वो घर पर ही रुकेगा, वो सोग मनाएगा, वो सबको दिखाएगा कि वो दुखी है। फिर जब कोई उससे पूछेगा तो वो जी भर के भड़ास निकालेगा। लेकिन हैरत दर हैरत थी कि खिजर जो एक पल भी उसे सुकून से बैठा सह नहीं पाता था, आज जैसे उसकी मौजूदगी सिरे से फरामोश किए हुए था। सिर्फ जोया थी जो एक मासूम सी निगाह उस पर डालती और फिर अम्मी को देखने लगती, जैसे माँ का ध्यान भाई की जानिब करवाने के लिए अल्फाज ढूंढती हो। अब वो नाश्ता करके उठ खड़े हुए और जल्दी करने का कहकर लाउंज की जानिब बढ़ गए। अम्मी बर्तन समेटने लगी। उठो बच्चों, जल्दी से, अच्छे से देना टेस्ट खिजर, कोई गड़बड़ ना हो। और जैन बैग लेकर आओ, अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल डालो उसमें और निकलो, शाबाश। मैंने स्कूल नहीं जाना। उसके लहजे के हटीलेपन ने अम्मी को चौंकाया, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हुए डपट कर बोली, क्यों क्यों नहीं जाना? स्कूल नहीं जाना तो क्या घर में डेरे डालने हैं? आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर होता जा रहा है जैन। ठीक हो जाओ वरना करना मुझे आता है। मैंने भी खिजर वाले स्कूल जाना है, मैं भी टेस्ट दूंगा। वो जी कड़ा करके आखिर कह ही गया। जब उसकी खामोशी की किसी को कोई परवाह ही नहीं थी तो वो खुलकर दिल की बात क्यों ना कहता। उसे कोई बूझना ही नहीं चाहता था तो वो पहेली क्या बनता। अम्मी ने शुक्र किया था कि वो खुद ही यूनिफॉर्म में आ गया, वरना उसे वजाहतें देनी पड़ती और भला जैन की ऐसी जुर्रत। खिजर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। इससे पहले कि वो जैन को हस्बे आदत मुक्का रसीद कर देता, अम्मी ने उसे इशारे से बाहर जाने का कहा। वो नफरत से जैन को घूरता हुआ बाहर चला गया। अम्मी जैन को मुलायमत से देखती उसके पास बैठकर नरमी से समझाने लगी, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें भी यही करवाना है, लेकिन अब्बू कहते हैं अगले साल। इस साल कुछ मुश्किल है ना, लेकिन अगले साल लाजमी यहीं करवा देंगे। अब्बू की प्रमोशन हो जाने दो ना मेरा बच्चा, फिर तीनों एक साथ जाया करना। वो उसके बाल से हलाती हलावत से उसे पुचकार रही थी, लेकिन जैन के दिल में हलावत पैदा नहीं हो पा रही थी। रात वो अम्मी अब्बू की गुफ्तगू सुन चुका था। उसे मालूम था कि प्रमोशन भी हो चुका और तनख्वाह भी बढ़ चुकी, लेकिन फिर भी उसके लिए मौका पैदा नहीं किया गया था। मुझे नहीं रुकना अगले साल तक, मैं भी उसी स्कूल जाऊंगा। आप खिजर का अगले साल करवा देना। अब्बू का प्रमोशन हो गया है, मैंने सुना है। मेरा भी करवाएं अभी, आज ही। तुम्हें नरमी से समझाओ तो भी समझ क्यों नहीं आता? हाँ, अम्मी ने अब के गुस्से से उसका कान खींच डाला। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जैन अंदर ही अंदर सहम गया, लेकिन चेहरे पर वही हठधर्मी थी। आराम से कह रही हूँ, बैग पकड़ो और निकलो बाहर, वरना जूते मारती ले जाऊंगी, समझे? सारा स्कूल देखेगा तुम्हारा तमाशा। बेहया अब माँ बाप की बातें भी सुनने लगा है। वापस आओ, देखो तुम्हारे छोड़े उतारती मैं। अम्मी अब मुकम्मल टोन में आ चुकी थी और जुबान और हाथ का खुलकर इस्तेमाल कर रही थी। वो रो पड़ा। उसकी देखा देखी जोया भी रो दी। अम्मी ने उसे भी झिड़क कर चुप करवाया और बाहर अब्बू के पास जाने का कहा। जैन मरे मरे कदमों से उठा तो उसकी हिचकियां बंधी थीं। उसने ढीले हाथों से बैग कंधों पर डाला, लेकिन लंच बॉक्स और वाटर बोतल को हाथ भी ना लगाया। अम्मी अभी भी मुसलसल बड़बड़ाती बर्तन किचन में पहुंचा रही थी। तभी अब्बू किसी से बातें करते सहन से अंदर लाउंज में दाखिल हुए। जैन ने सुते चेहरे से उस जानिब देखा तो दादी को देखकर उसमें नई रूह बढ़ गई। पीछे तो कीर चाचू भी थे। वो बैग फेंकता दीवानावार दादी की ओर लपका। दादी ने उसका नन्हा सर अपने पेट से लगाया, जरा सा झुककर दोनों बाजुओं में उसे समेट लिया। जोया भी भागती हुई चाचू के पास गई, जिसे उन्होंने झुककर बाहों में उठा लिया। अम्मी भी आवाजें सुनती बाहर आ गई। सास और देवर को देखकर उनका मूड ऑफ हो गया, लेकिन अलैक सलैक करती उन्हें बिठाने लगी। ये जैन क्यों रोया हुआ है? देखो तो कैसे पसलियां फड़क रही हैं इसकी। बाहर खिजर भी मुंह सुजाकर गाड़ी में बैठा है। लठ मार सलाम दे मारा उसने। दादी जैन को साथ लगाए सोफे पर बैठते ही बोली। अम्मी गुस्से के घूंट भरती तहम्मुल से बोली, जैन का तो आपको पता है ना, दिमाग खराब हो जाए किसी बात पर बस। स्कूल जाने का कह रही हूँ, अकड़ दिखा रहा है। हर वक्त खिजर का मुकाबला करने पर रहता है। मर गई समझा समझा के कि बड़े भाई की इज्जत करना सीखे, लेकिन इस बच्चे की फितरत अल्लाह जाने किस पर गई है। मजाल है जो अपनी मनमानी से बाज आ जाए। अम्मी कब खिजर के बारे में सख्त सुस्त सुन सकती थी। अब भी उन्होंने दादी का सारा ध्यान खिजर की बदतमीजी से हटवा कर जैन की खुद साख्ता मनमानी की जानिब करवाने की भरपूर कोशिश की। जैन ने माँ के चेहरे पर शिकवा कुना निगाह डाली और जोया के साथ ही चाचू की गोद में चढ़कर बैठ गया। अरे तो जैन की मनमानी का ये मतलब है कि खिजर बड़ों का अदब आदाब भूल जाए? सलाम दुआ के गाड़ी में बैठे बैठे ली जाती है। अकबर तुम भी कुछ बोल लिया करो बेटा, मुंह को हवा लगवाया करो। दादी ने दोबारा खिजर की खुद सरी जताकर बेटे को भी सुना डाली। वो खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोले, वो बस अम्मी बड़ा है ना तो लाड उठवाता है। आज उसका एडमिशन टेस्ट दिलवाना है तो इसलिए भी कुछ टेंशन में होगा। ओ अच्छा, तो नए स्कूल में दाखिल करवा रहे हो, अच्छा किया। जैन पहले ही इस स्कूल में सेट नहीं हो रहा था। अच्छा है, बदल जाएगा तो माहौल भी बदलेगा। दादी ने इत्मीनान का इजहार किया, जिस पर अम्मी और अब्बू दोनों जज्बज हुए।
वो अम्मा ज़ैन को नहीं करवा रहे अभी, इंशाल्लाह अगले साल। अब्बू के कहने पर चाचू और दादी ने अचंभे से दोनों को देखा। अम्मी के चेहरे पर बेनियाजी झलक रही थी। वो खामोश रहीं। सूरत हाल समझने में उन्हें वक्त नहीं लगा था। ज़ैन का रोए हुए चेहरे के पीछे वजह पूछने की जरूरत नहीं रही थी। अच्छा जाओ तुम लोग फिर, मैं और तो कीर हैं पीछे, आओगे तो बात होगी, जाओ अब। दादी ने उन्हें जाने का इंदिया दिया तो ज़ैन चाचू की गोद में मजीद दुबक गया। अब्बू नजर बचाकर फौरन बाहर निकल गए, लेकिन अम्मी को यह सब बर्दाश्त करना खासा मुश्किल लगा। ज़ैन चलो, स्कूल से देर हो रही है, गाड़ी में बैठो जाकर। दादी अम्मा ये देखे। ज़ैन ने फौरन दादी का हाथ थामकर माथे से लगाया। गर्म है ना, मुझे आज स्कूल ना भेजें, उल्टी भी आ रही है। कहे ना आप प्लीज, पेट भी दर्द कर रहा है। ज़ैन माँ को मुकम्मल नजरअंदाज की इस वक्त सारी कोशिशें दादी को हथियार बनाने पर सर्फ कर रहा था और वो कामयाब रहा। सादिया तुम लोग जाओ, आज का दिन छुट्टी कर लेगा ज़ैन तो स्कूल नहीं ढह जाएगा। मुझे भी इसका सारा पिंडा गर्म लग रहा है, यखनी पिला देती हूँ इसे बना के, कल चला जाएगा। तुम जाओ, जाकर अपने बच्चों का एडमिशन करवा के आओ। दादी ने सादा लहजे में दो टोक कहा, लेकिन सादिया को भाले की मानिंद लगा। वो ज़ैन को खशमगी नजरों से घूरती सोफे पर पड़ा शोल्डर बैग और अपनी चादर उठाती बाहर निकल गई। उनके जाते ही ज़ैन के चेहरे का इत्मीनान देखकर दादी और चाचू ने एक दूसरे को बेहद फिक्रमंदी से देखा था। दादी हर 2-3 माह के बाद हफ्ता 10 दिन के लिए उनके घर रहने चली आती थी। गो के सादिया के माथे पर उनको देखते ही तैवरियां चढ़ जाती थी, मगर दादी को परवाह नहीं थी। उन्हें जब आना है तो सो आना है। सादिया लाख मुंह बनाती, लेकिन अकबर कम अज कम इस मामले में उनके हमनवा नहीं थे। वो माँ का एहतराम भी करते थे और अगर कभी उन्हें आने में ज्यादा वक्त हो जाता तो खुद ही जाकर ले आया करते। जब तक दादी रहती ज़ैन बेहद हल्का फुल्का महसूस करता। दादी उसके नन्हे दिल के जख्मों का मरहम थी। वो बिन कहे उसकी परेशानी भांप जाती और फिर बिना महसूस करवाए उसे उस परेशानी से निकाल लिया करती। उनकी मौजूदगी में खिजर ज़ैन को कम से कम मुंह लगाने की कोशिश करता, क्योंकि दादी इंसाफ का तराजू थामे मौका पर पहुंच जाती और उसे बेजा जोर आवरी से रोक देती। वह मतवाजन शख्सियत की मालिक थी और तवाजन को पसंद करती थी। अपने बच्चों में भी वो मुनसिफाना तर्ज की कायल थी। उन्होंने कभी एक का हक और वक्त दूसरे को नहीं दिया था, चे जाए कि दूसरा खुद उससे दस्तबरदार ना हो जाए। लेकिन सादिया को उनसे भी यही शिकवा था कि वो दूसरी बहुओं को उन पर तरजीह देती हैं, जबकि दादी ने हमेशा उनके खुद के रवैये के पेश नज़र कदम पीछे किए थे। रिश्ते में सादिया उनकी सगी भांजी थी, लेकिन खाला ने उन्हें खाला कम सास ज्यादा समझा था, इसलिए उन्होंने दादी के रवैये को कभी गैर जानिबदारी से नहीं परखा था। दादी ने बहू के घर के मामलात में कभी दखल नहीं दिया था, सिवाय इसके कि उन्हें ज़ैन के साथ उनका मुतफरकाना रवैया खलता था। वो इस नाइंसाफी को महसूस करती और फिर टोक डालती। नतीजतन सादिया के दिल में उनके लिए मैल जमा हो जाता। वो खिजर के मामले में जनूनी थी और उनके इस जुनून का खमियाजा ज़ैन को होश संभालने से भुगतना पड़ा था। सादिया के बढ़ावे ने खिजर को खुदसर और खुदगर्ज बना डाला था। उसके दिमाग में यह बात रासख हो चुकी थी कि वो ज़ैन से बरतर है और हर चीज़ पर उसका हक पहले है, क्योंकि वो बड़ा है। उसे देना आता ही नहीं था, वो लेना जानता था, भले छीन कर लेता। और जब जब वो छीनता, सादिया उसकी इस हरकत पर बिल्कुल ऐसे फखरिया मुस्कुरा देती जैसे माँ अपने शेरख्वार बच्चे की किलकारी पर मुस्कुराती है। उन्हें यह ख्याल तक न आया कि कभी उनके रवैये का अदम तवाज़ुन उनके बच्चों की शख्सियत पर कैसे मनफी असरात मुरतब कर रहा है। ज़ैन अपने ही घर में एक सहमा हुआ और झिझक का शिकार बच्चा था, जो अपनी इंतहाई ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी कहते हुए सोच में पड़ जाता था। ये एहसाबी तनाव उसे जिस्मानी आवारज में मुब्तला कर रहा था। वो अपने ही घर में लावारसों की तरह आते जाते बड़े भाई से दब जाया करता था। शिकायत लगाने के लिए उसके पास अल्फाज तो थे, लेकिन वो एतमाद और इख्तियार नहीं था जिसके बलबूते पर वो अपनी अहमियत जता सकता। नाइंसाफी की बुनियाद पर खड़ी होने वाली इमारत के हर रखने में सकम और अदावत ही जन्म लेती है। रात होते ही वो खामोशी से बेड से उतरा, अपने बिस्तर पर बिछी नायलॉन शीट तरीके से तय की और बगल में दबाकर बिना चाप दादी के कमरे की जानिब चल पड़ा, जहां दरवाजे की निचली दर्ज से आती रोशनी की लकीर देखकर उसे सुकून आया कि दादी और चाचू अभी सोए नहीं हैं। जाग तो अभी अम्मी और अब्बू भी रहे थे। रोशनी की लकीर और बातों की ऊंची मध्यम होती आवाज़ मुसलसल आ रही थी, लेकिन आज वो हस्बे आदत वहां बातें सुनने रुका नहीं। जल्दी से दादी के कमरे की जानिब बढ़ा और बिना नॉक किए अंदर मुंह घुसा लिया। दादी अपने बेड पर लेटी थी और चाचू उनके पैर दबाते बातें कर रहे थे। उसे देखकर दोनों चौंक गए तो वो झिझक कर रुक गया। चाचू ने फौरन उसे अंदर बुलाया। वो दरवाज़ा बंद करता छोटे छोटे कदम उठाता करीब आया तो दादी उसकी बगल में दबे साजो सामान को देखकर मुस्कुरा दी। चाचू भी मुसलसल मुस्कुराते उसके बोलने के मुंतजिर थे, लेकिन वो कशमकश का शिकार था।
आया मुद्दा बयान करे या पलट जाए। दादी ने उसकी मुश्किल आसान की और थोड़ा आगे खिसक कर उसके लिए जगह बनाई और बोली, जल्दी से शीट बिछाओ, अगर माँ आ गई तो ले जाएगी तुम्हें वापस। उसके आने से पहले सो जाए मेरा चांद, शाबाश। और जैन को चाबी लग गई। फटाफट उसने सलीके से एक तरफ शीट बिछाई और झट से लेटकर दादी की जानिब करवट लिए अपना चेहरा उनके सीने में घुसा लिया। दादी ने उसके खूबसूरत बालों वाले सर को चूमा और लाड से बोली, मेरा बग्गू गोशा। उनकी उंगलियां उसके बालों में सरसराने लगीं। उसने चेहरा ऊंचा किया और दबी दबी शर्मिंदा सी आवाज में दादी को याद दहानी करवाई, दादी अम्मा मुझे रात को वॉशरूम के लिए उठा देना। अगर कोई मुझे वॉशरूम भेज दे तो मैं बिस्तर गीला नहीं करता, प्लीज़ याद से उठा देना। दादी ने एक बार फिर उसका बोसा लिया और सर हिला दिया। चाचू और वो इधर उधर की बातों में मसरूफ हुए तो उसकी पलकें नींद के बोझ से जुड़ गईं। वो पल पल गहरी होती नींद की जानिब बढ़ रहा था जब अम्मी और अब्बू का नाम सुनकर उसका सोता दिमाग दोबारा से अलर्ट हुआ। मैं तो कहता हूँ अम्मा जी सुबह मेरे साथ ही वापसी करें, भाभी का दिमाग तो ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। भाईजान की वैसे ही बोलती बंद रहती है उनके सामने। सुबह हमारे आते ही मुंह बन गया था भाभी का। ना रहे अम्मा आप यहाँ, आपको क्या जरूरत है उनका सूजा मुंह देखने और सहने की। जैन को जरूरत है मेरी तौकीर, ये बच्चा हद से ज्यादा नजरअंदाज हो रहा है। तुमने देखा नहीं कि सादिया ने सिर्फ जैन का दाखिला नहीं करवाया नए स्कूल, बाकी दोनों को करवा दिया। सोचो क्या बीत रही थी जैन पर सुबह। वो हमारे आने से पहले कितना रोया हुआ था, कितना दुखी था। मुझे रहने दो 2-4 दिन यहीं, जैन को संभाल लूंगी तो वापस आ जाऊंगी। क्या संभालेंगी अम्मा, और फिर कितने दिन तक? आखिर को फिर जैन इन्हीं के हवाले होगा ना। कोई नई बात तो नहीं है भाभी का ऐसा रवैया जैन के साथ। मुझे तो हैरत होती है अम्मा कि जैन उनकी खुद की औलाद है भी या नहीं। जब हमारे साथ थे भाई भाभी तभी हुआ था ना अम्मा ये। चाचू ने तायीद चाहने वाले अंदाज में पूछा तो दादी ने तस्बीह के दाने गिराते हल्का सा मुस्कुराते हुए सर हिलाया। रात को याद है जैन रोता रहता था तो भाभी बेजार रहा करती थी। वो मजीद बिलकता तो वो और ज्यादा जाबिर हो जाती। कमरे से निकलकर बाहर दालान में ले आती और तख्त पर पटक दिया करती थी कि रोता रहे उनकी बला से। आखिर आप ही निकलकर उसे थामती और अपने कमरे में ले जाती थी। अम्मा मैं तब भी कहा करता था कि भाभी जानकर करती हैं ऐसा ताकि रात उन्हें जैन को संभालना ना पड़े। सारी रात आप इसकी देखभाल करती थी। जैन के होने के बावजूद वो खिजर को ही अपने साथ सुलाती थी। अल्लाह जाने कैसा बैर था अम्मा ये। नफसियाती गिरा थी, बैर नहीं। मैं बैर नहीं कहूँगी तौकीर, क्योंकि माँ बैर नहीं पालती। बस कोई नफसियाती आर्जा उसमें अपनी ही औलाद की कशिश ख़त्म कर देता है। जैन में सादिया को कोई कशिश महसूस नहीं होती थी क्योंकि वो खिजर से तवज्जो हटाना चाहती ही नहीं थी। यही वो नफसियाती गिरा थी। खिजर पर अपनी मुकम्मल तवज्जो सर्फ करके वो दर हकीकत उस सादिया पर तवज्जो देती थी जिसे अपने बचपन में ना मिल सकी। वो अपनी ही महरूमियों का अजाला करती रही। दादी सुकून से तस्बीह के शुमारों को बगौर देखती कह रही थी और तौकीर चाचू हैरत से उन्हें देख रहे थे। जैन का नन्हा दिल जकड़ा हुआ था। वो किसी बेजान बुत की मानिंद पड़ा था जिसमें मामूली सी हरकत भी सारा शहर तोड़ देती। कैसी महरूमियाँ अम्मा, किधर की? हमने तो भाभी को थानेदार नहीं बना देखा है हमेशा, ना किसी का लिहाज करते पाया और ना मुरव्वत निभाते देखा। अपने मैके में भी ऐसा रोब है कि कोई इनके आगे दुम नहीं मारता, और आप कह रही हैं महरूमियाँ देखी? किधर से देख ली अम्मा? चाचू हिलते हुए टांगे दबाते बेयकीनी और लापरवाही से बोले तो दादी मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। जब कमजोर का बस चलता है ना तो कभी कभार वो ताकतवर से ज्यादा जालिम साबित होता है। सादिया का भी यही मामला है। बच्ची अपनी माँ से सीखती है और तुम्हारी खाला ने औलाद में तफरीक के गुण खुद सादिया में डाले। जो इसने अपने बचपन में होते देखा वही वो आज खुद भी कर रही है। फर्क बस इतना है कि उसने ये रवैया बड़ी औलाद होने के नाते सहा और खुद वो अपनी छोटी औलाद के साथ वैसा सलूक कर रही है। खिजर को बेजा अहमियत देकर वो खुद को अपने आप को तस्कीन देती है। सादिया तुम्हारी खाला की बड़ी औलाद थी। जब यह हुई तब भी तुम्हारी खाला का मुंह बन गया था क्योंकि उसे बेटे की चाह थी। कुछ ससुराली जहन और कुछ मुकाबलेबाजी। दूसरी औलाद अल्लाह ने झटपट गोद में डाल दी और वो भी बेटा। सादिया से लगाव कम से कम होता चला गया। फिर तुम्हारी खाला के यहाँ लाइन लग गई बच्चों की, जिसमें ऊपर तले 4 बेटे थे और सबसे छोटी 2 बेटियां। लेकिन तुम्हारी खाला का बेटों का चाव पूरा हो गया था, इसलिए छोटी बेटियां भी सीने से लगाए रखती। सादिया की हैसियत सिर्फ अपने बहन भाइयों को संभालने वाली की थी। हर वक्त कोई ना कोई काम करती या री करता बच्चा संभाले हुए होती। कोई गलती करती तो माँ धुनक देती, बच्चा जंग करता तो इसकी शामत। घर के कामों में कोताही होती तो धुनाई। वो क्या पहनती है क्या खाती है माँ को परवाह तक ना होती। कज़नों की किताबें ले लेकर पढ़ती रही और प्राइवेट मैट्रिक किया।
जिस दिन इसने पर्चा देने जाना था 4 चोट की मार खाकर गई थी क्योंकि तुम्हारी खाला को इस पर ताव आ गया कि बिना पूछे दाखिला क्यों और कैसे भिजवा दिया। पता नहीं बाप को कैसे रहम आया और सादिया की खलासी करा के पर्चा दिलवाने सेंटर छोड़ आया। लेकिन मैट्रिक के बाद तुम्हारी खाला ने पूरी निगाह रखी कि कहीं आगे कॉलेज की किताबें ना पढ़ डाले। बच्चे संभाल संभाल के और घर के काम काज कर करके लड़ाका हो चुकी थी सादिया। जब माँ को छोटी बहनों को प्यार करता देखती तो किलसती और उन्हें छुप छुप कर मारती। भाइयों पर जोर चलता तो उन्हें भी उधेड़ डालती और बाद में खुद गजब की मार खाती। मुझे इस पर तरस भी बहुत आता और अपनी बहन पर गुस्सा। सादिया बदलिहाज हो चुकी थी, लेकिन ऐसी ही चिड़चिड़ करती को मैंने बहू बनाने का फैसला किया कि माहौल और हालात बदलेंगे तो लाजमी मिजाज पर अच्छा असर पड़ेगा। हुआ भी यही कि अकबर से शादी होते ही वो चहकने भी लगी और इज्जत और अदब से बात भी करने लगी। उसकी माँ को उसके ब्याह के बाद इसकी कदर हुई क्योंकि सारे घर का निज़ाम उलट पुलट हो गया। सादिया को मौका मिल गया, वो जब भी मैके जाती सब कुछ समेट कर और संभाल कर आती और साथ वो लेक्चर देती कि सभी कान दबाए सुनते जाते। माँ में दम नहीं था कि घर की देखभाल करती, मारे बांधे हांडी रोटी कर लेती, सफाई सुथराई के लिए भी काम वाली आ जाती, लेकिन घर फिर भी उल्टा ही रहता। कपड़े धुल तो जाते लेकिन तय करके ठिकाने ही ना लगते और एक ही जगह ढेरी पड़ी रहती जब तक कि दोबारा धुलाई की बारी ना आ जाती। दोनों छोटी बेटियां अभी बहुत छोटी थी, घर नहीं संभाल सकती थी और लड़के ला उबाली। ऐसे में सादिया की बन आई, वो चीफ गेस्ट बन गई। घर जाती तो सब आगे पीछे होते, माँ सदके वारी जाती और बाप भी सलाह मशवरे के लिए पास बिठाने लगा। सादिया घर के काम करती जाती और सबकी क्लास भी लिए जाती, जिसे सब मीठी गोली की तरह चूसते रहते लेकिन उफ भी ना करते। सादिया ने दबतों को और दबाया और मैके के हर काम का इख्तियार ससुराल बैठे अपने हाथ में ले लिया। वो यहाँ होती और वहाँ पत्ता भी ना हिलता जब तक कि इसका चक्कर ना लग जाए। फिर खिजर हो गया तो जैसे इसके लाशोर में छुपा एहसास से कमतरी जनून की शक्ल ढालकर खिजर पर मोहब्बत की सूरत बरसने लगा। वो खिजर की दीवानी थी, हर एक से कहती कि पहली औलाद है, ज्यादा तवज्जो मांगती है, ना दूंगी तो शख्सियत मसक हो जाएगी। जो कमियां उसकी परवरिश में रवा रखी गई वो हरगिज भी खिजर को नहीं आने देना चाहती थी। बात गलत ना थी, लेकिन एक को सर पर बिठा के दूसरे बच्चे को उसने जैसे यकसर भुला दिया। अपने बहन भाइयों का बदला वो नन्हे जैन से लेने लगी और अब तक ले रही है, और ना जाने आगे आने वाला वक्त उस बेचारे के लिए कैसी अजियत रकम कर रहा है। दुख होता है मुझे, मैंने सादिया की तकलीफ देखी है और महसूस की है। ऐसे ही जैन की महसूस करती हूँ तो दिल जलता है। पता नहीं इस बेवकूफ़ औरत को अपनी ही औलाद की तकलीफ खुद कब महसूस होगी। दादी बोल बोल कर थक गई और साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। चाचू एकदम खामोश हो गए, जैसे कुछ सोचते हों। उन्होंने जवाब में अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोला था। शायद उनका दिल भी जैन के लिए दुखी था। आंखें बंद किए पड़ा जैन, जो मुकम्मल होशो हवास में सारी बातें सुनता रहा था, उसकी आंखों में पानी भर रहा था जिन्हें वो सख्ती से आंखें मीच कर पीछे धकेल रहा था। जब तक वो जागता रहा उसके जहन में एक ही बात गर्दिश करती रही, इस सब में मेरा क्या कसूर। वो जब्त करने का गुर जानता था क्योंकि यही वो चीज़ थी जो घर में उसे करने को वाफर मिली थी। सो वो अब भी कर गया, लेकिन उसके अंदर का बेजुबान दुख पहले से ज्यादा शिद्दत से रिसने लगा। जिस सोच को उसने लाशऊर में दबा रखा था वो जस्त लगाती शऊर में आदम की। मैं अम्मी अब्बू का सगा बेटा नहीं हूँ, मुझे लिया गया है कहीं से। यह सच नहीं मालूम होने के बावजूद भी उसने खुद से की जाने वाली बिला जवाज नफरत को जवाज फराहम किया। पूरी रात वो नींद में भी बेसकून रहा था।